Now let us come to the conclusion part. What is report writing? हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. आपने पढ़ा होगा कि there was an accident due to fog. Some people were injured, or you might have read about some news which has happened. किसी स्कूल के अंदर कोई सेमिनार हुआ था, or there was an eye donation camp near your vicinity. तो ये सब हमारे न्यूज़पेपर में एज अ हेडलाइंस, एज अ न्यूज़ बनकर आता है. एंड व्हेन वी आर राइटिंग देम, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. आंखों देखा हाल. इन हिंदी हम इसको कह सकते हैं आंखों देखा हाल. समथिंग विच वी हैव विटनेस्ड. हमने जिस चीज को विटनेस किया है. एंड the reports can be written in the newspapers. It can be written in the web media nowadays. मतलब आजकल तो web media is also one portion. And apart from that, we also give our reports in our school magazines. मतलब स्कूल के अंदर कोई फंक्शन हुआ है, स्कूल के अंदर कोई इवेंट हुआ है, कोई सेमिनार हुआ है, कोई वर्कशॉप हुआ है, even though it might have been virtual, but still we give them in our school newsletters. So anything which has been reported, which has happened, and we are reporting it, it all comes under report writing. It comes under report writing. Now, first of all, I'll explain you what is report writing, then you can copy down. Do not be in a hurry. If you are not copying down, then it is your problem. Because just 1 second before you have told me that you are not making the notebook, so that is wrong. Now, what is report writing? It answers the question of what, when, where. It answers the question of what happened, when it happened, where it happened, and how it happened. And report writing is written in a past tense. Why? Because the event has already happened. It has already occurred. मतलब ये जो event है वो हो चुका है, और इसीलिए we will be using only past tense. We only use past tense. Now what is past tense के अंदर? Now the question comes कि whether we are using past perfect or we are using past continuous. So that will depend upon the sentence that we are framing. So in a whole we use past tense. We have two kinds of reports. One is newspaper. एक हमारा जाता है न्यूज़पेपर को, and the second one goes to magazine. The content for both is same. What happened, when it happened, where it happened, and how it happened. कंटेंट दोनों का सेम जाता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है. The only thing is the format is changed. न्यूज़पेपर और मैगजीन की जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग होता है. The way when we are writing a newspaper report and the way when we are using a magazine report, the format is different. But the content is the same. What happened, when it happened, where it happened, and how it happened. It gives the question answers to these questions.
These are the three parts. पहले intro, मतलब that portion will tell about the main, आपका जो भी headline है उसको describe करता है. Then the second one is the description कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था. And then the conclusion, how things ended. Because why I am vague? क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट है तो सर आपका कंक्लूजन अलग होता है. कोई इवेंट है तो उसका कंक्लूजन आपका अलग होता है. एंड वी हैव रिपोर्ट्स फॉर बोथ ऑफ देम. हमारे पास दोनों चीजों के लिए आपके रिपोर्ट्स होते हैं. So this is how it is measured. And right now it will be assessed on a scale of 5 marks. It will be, maybe it is in option to letter come biodata. Letter come biodata के बदले में आ सकता है report writing. Both of them are going to be a difficult question because both of them needs good vocabulary. For report writing, the skills you require is, it should be in a as I have written at the top, what happens, when it happens, where it happens, and how it happens. So you have to follow that flow. क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था. तो you have to follow that flow. ऐसा नहीं है कि पहले आप लिखो कैसे हुआ था, उसके बाद आप लिखो कब हुआ था. So that is coherency. You need to use certain vocabulary. Certain vocabulary has to be used. There are certain technical terms which you need to use. And there should be proper punctuation. क्योंकि आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज आपका लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपके स्पेलिंग्स, मतलब इन सबके मार्क्स कटेंगे. अगर आपका लैंग्वेज एकदम वो घर वाला है, सिंपल, या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप मतलब कि आप लिखते हो टुक 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 टुक, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो यू आर गोइंग टू बी मार्क्ड 0. It consists of format, content, expression. 1 mark for format, 2 marks for content, and 2 marks for expression. And expression जो है, that consists of what we call as language, grammar, errors, spellings, everything. तो आप खुद देख लीजिए. आप ये मत बोलना कि मैम मैं तो 200 पेज का लिख कर आया था, लेकिन टीचर 200 वर्ड्स का लिख कर आया था, टीचर ने मुझे मार्क्स ही नहीं दिए क्योंकि टीचर पागल है. प्लीज डू नॉट ब्लेम द टीचर्स. योर लैंग्वेज हैज टू बी वेरी रिफाइंड. और स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करिएगा. Kindly note down the format. This is the format for general report writing. फिर I'm coming to the newspaper one. Please quickly, I'm giving you 1 minute.
Now, as I said that there are two kinds of reports. One is newspaper and the second one is print media. That is, sorry, one is newspaper, that is print media, and second is school magazines. Normally, कोई मतलब आपकी इसमें बोर्ड्स में तो normally it is mentioned for what you have to write. Any event, anything that has happened in your school, and that is everything is event वगैरह ही होता है, not any tragedy. But any kind of event, any kind of mishap, कोई भी मतलब कि violence है या फिर there is मतलब कि कोई landslide हुआ, earthquake हुआ, accident हुआ, anything मतलब any mishap or any event, both are given in the newspaper. As I said that it should be very particular. तो आपका जो न्यूज़पेपर का होता है इट शुड बी अ कैची हेडलाइन. इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. देन इन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हेड मतलब जो भी आपका न्यूज़पेपर का जो भी आपका रिपोर्ट है जिस पर आप लिख रहे हो दैट शुड बी देयर. मीन्स पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए दैट इट इज रिलेटिंग टू दिस इंसिडेंट और दिस एक्सीडेंट. देन द पर्सन हु इज राइटिंग, स्टाफ करस्पॉन्डेंट, मतलब रिपोर्टेड बाय स्टाफ करस्पॉन्डेंट. नॉर्मली ऐसा लिखा होता है दैट यू आर दीपक द स्टाफ करस्पॉन्डेंट ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, तो वो. देन डेट हमेशा हम लोग एक दिन पहले का डालते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स होते हैं वो नेक्स्ट डे आपका पब्लिश होता है. देन प्लेस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कोई भी जगह तो आप अपना न्यू दिल्ली डाल सकते हो. बट इफ इट इन द क्वेश्चन इट इज रिटन इट हैपेंड इन कश्मीर, इट हैपेंड इन पंजाब, इट हैपेंड इन बेंगलुरु, तो आपको वही प्लेस लिखना है. यू हैव टू बी पर्टिकुलर, यू हैव टू से मतलब आपको वो देखना पड़ेगा क्योंकि समटाइम्स द क्वेश्चन में दिया होता है. ये हम लोग न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग मैगजीन. देन द फर्स्ट, देर इज नो नीड ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू पैरा. और अगर आप पैरा में डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट. आप पैरा में डालो या ना डालो, इट्स नॉट. आप नहीं डाला इसलिए आपके मार्क्स नहीं कट जाएंगे, आपने डाला इसलिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. द फर्स्ट फ्यू लाइन्स विल टेल व्हाट हैपेंड. मतलब समझ लीजिए कि एक सेमिनार हुआ तो सेमिनार वॉज कंडक्टेड, कहाँ हुआ, इन स्प्रिंगडेल स्कूल, पूसा रोड, न्यू दिल्ली, ऑन मतलब कल का डे है तो ऑन थर्सडे, जो भी आपका डे था कल, 3 फरवरी. देन व्हाट वाज इट फोकसिंग अपॉन, देन वो कैसे शुरू हुआ, फिर आपका कंटेंट स्टार्ट हो जाता है. मीन्स कैसे शुरू हुआ, मे बी द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स. Then the chief guest gave his or her verdict, उसने अपना वर्ड्स बताया. तो जो जो उसमें हुआ होगा वो सारा आपका कंटेंट में आ जाएगा. Then how it ended means there was a vote of thanks या फिर रिफ्रेशमेंट था, anything that would come under conclusion. Now let us come to the part of, say you are having a report on any accident, on any mishap, on any tragedy. उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मिसहैप कहाँ हुआ, मतलब आप इसको कैची से स्टार्ट कर सकते हो. 10 people were killed, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो. नॉर्मली वी यूज अ पैसिव वॉइस. हम एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस यूज करते हैं. What is the meaning of passive voice? Means if I have to say that, मतलब मुझे ये बोलना है
कि the man killed the snake. तो ये एक बहुत सिंपल सा लग रहा था, मैन किल्ड द स्नेक, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखती हूं कि अ स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, तो दिस गेट्स सिंपैथी फॉर द स्नेक। और अगर वो डेंजरस स्नेक था, अ पॉइजनस कोबरा वॉज किल्ड, तो उससे उस इंसान के बारे में जो है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हम बोल रहे हैं। सो पैसिव वॉइस जो है दैट वुड गिव वेटेज टू योर वर्ड्स। अगर आप लोग आज तक वगैरह देखते हो, इफ यू आर लुकिंग इनटू द यू नो दी वर्ड्स, तो आप देखते होंगे तो वो कैसे बोलता है, देश की आवाज, मतलब वो दे वांट टू टेल इट, दे जस्ट वांट टू फोकस इट। 10 लोगों का देवता, तो यू यूज अ पैसिव फॉर्म दैट इज मोर इफेक्टिव। नाउ लेट अस कम टू द पोर्शन दैट कि हमने एक ट्रेजेडी बतानी है। तो एक बस के नीचे, मतलब अभी रिसेंटली था, देयर वाज अ न्यूज डे बिफोर यस्टरडे दैट अ पिटी डॉग वाज, मतलब कि जो कुत्ता था उसको एक ऑडी जो है वो चढ़ गई। अब अगर इसको बोलते हैं कि एन ऑडी रैन ओवर अ डॉग, तो ठीक है, दैट्स आल्सो अ न्यूज। लेकिन अगर हम बोलते हैं अ स्लीपिंग डॉग वाज रन ओवर बाय एन ऑडी, तो वो एकदम से वो लेकर आता कि वेटेज लेकर आता, माय गॉड कितनी बड़ी बात हुई। तो रिपोर्ट राइटिंग में थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स यू यूज पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ an Audi ran over the dog, a dog was run over by an Audi, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो वी यूज पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले समझिए कि आपको किसी मिसहैप को बताना है, तो व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली क्या हुआ था। फिर वो एक्सीडेंट या मतलब जो भी मिसहैप है, रॉबरी, कुछ भी है, वो कहाँ हुआ था, वेयर इट टुक प्लेस। देन व्हाट, मतलब कि व्हाट वाज द टाइम, अगर आपको टाइम पता है इस तकरीबन इस टाइम पे हुआ था। एंड देन आंखों देखा हाल, वहां के जो लोग थे, सोर्सेस थे, अगर वहां कोई ऑन लुकर्स थे, मतलब वहां कोई खड़ा था, तो उन लोगों ने क्या बोला। देन अगर एनी इंजुरी या फिर कोई डेथ हुई है तो उनको कहाँ लेकर गए, इमीडिएटली व्हाट वाज द एक्शन टेकन प्लेस, मतलब द इंजर्ड मस्ट हैव बीन टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल। एंड देन what the authority said about the event, about the tragedy, मतलब इस ट्रेजेडी के बारे में वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है, ट्रांस मतलब कि ट्रैफिक पुलिस है या फिर पुलिस है, उसने क्या बताया, मतलब व्हाट वर देयर व्यूज। क्योंकि इसमें आप कोई एंडिंग वैसा नहीं दे सकते हो, यू कैन नॉट से कि हाँ हम लोग खड़े होकर हमने जनगण मन गाया था, यहाँ पर आपको एंडिंग देना पड़ेगा। तो एफआईआर लॉन्च हुआ या फिर मतलब कि कॉम्पनसेशन दिया गया, होता है ना कि कभी कभी द गवर्नमेंट गिव्स कॉम्पनसेशन इफ देयर इज सम सीरियस एक्सीडेंट, तो कॉम्पनसेशन दिया गया, व्हाट हैपेंड, एफआईआर किया, व्हाट वाज द एक्शन टेकन प्लेस, उसके साथ हमारा ये खत्म होता है। So this is how a report is formed. Now I'm going to do one quick report with you, and I'm going to do a tragedy with you today, to start off with a difficult one, then we can move on to the easier one. That will help you out. So I'm doing a newspaper report. There are many reports, not 1, 2, 3, 4. पता नहीं कितने सालों से आ रहा है. In fact, it was in between 2 years reports were deleted from the syllabus, and that was only because कई पेरेंट्स का मानना था कि रिपोर्ट के अंदर आप ऐसे ऐसे डरावने चीजें देते हो जिससे बच्चा घबरा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है. इट इज ओनली टू एनहांस योर वोकैबुलरी, इट इज ओनली टू एनहांस योर राइटिंग स्किल्स, your communication skills, the way you are communicating in the written forms. So I'm starting it. Kindly take out your notebooks.
The Tribune is a newspaper. As nothing is given, so I have taken the place myself. It is up to me that what I can do.
Okay. Now, if you look onto the questions, you will, sorry, on the, yes, of course, you can write it. Address will not be given. What happened? Three women and a 2 month, मतलब कि 14 people. That is what happened is 14 people, including three women and a 2 month infant, lost their lives. An accident happened. Then when it happened on in the wee hours. Wee hours means the early morning hours. Wee hours we use for the early morning hours. Then when मतलब कि कहाँ हुआ था, मतलब कि it was कहाँ से आ रहा था, the ill-fated bus, that is I have used these words, was carrying around 25 persons returning from a wedding ceremony Chennai. Then मतलब कि what eyewitness या sources ने क्या कहा, as per the eyewitness the truck loaded with iron bars was coming from the opposite direction and it collided head on the spot. Then हुआ क्या था, on the spot ही 10 लोगों की मौत हो गई थी. This is our creativity. Then the injured were rushed to the nearby hospital. फिर 4 persons succumbed to their injuries. मतलब 4 लोग जो है उनको बचा नहीं पाए. 2 persons received minor bruises and were discharged after first aid. Then what was the action taken? मतलब from the authorities, the driver is absconding. Absconding मतलब भाग गया है. Spelling याद रख लेना because these kinds of questions can come. Then an FIR has been registered. The police is probing an investigation into the matter. मतलब कि तहकीकात कर रही है. Probing an investigation मतलब तहकीकात कर रही है. So this is how report is written.